Hello everyone, welcome to session. So today we're going to discuss concepts of ratio. Let's start with the definition of ratio. Ratios are just comparison, comparing the size, the numbers, the quantum of any two or more comparable quantities. So this is a book definition. Let's understand this thing. This part is important. Comparable quantities, like you'll compare speed to speed. You'll compare speed of two different car. You will compare speed of two different bikes. You cannot compare speed with time. Fine. I hope this thing is clear. So generally we find the ratio of speeds of two different car. We'll find the efficiencies of two-person. We find the ratio of salaries of two-person. So I hope the definition is clear. Now let's see a simple, very simple example. There are two persons, Ram and Mohan. These are the two persons, and you want to compare their salaries. You know that Ram is getting a salary of 50k thousand per month, 50,000 per month, whereas Mohan is getting 25k per month. So to compare these salaries, you'll find the ratio of Ram to Mohan salaries. So that is 50 and 25, that is 2:1. So from this, you can conclude that Ram's salary is twice of Mohan's salary, or you can conclude Mohan's salary is half of Ram's salary. I hope this very basic concept of ratio is clear. Now see the ratio comparison. We'll be comparing two ratios, like find which one is greater or which one is lesser. But what I find, these type of questions become redundant in the exam like CAT, where you have calculator. So if like calculations are difficult, just use the calculator and you can easily compare the ratio. But concepts are important. It might be useful in solving few questions, and it also useful for exams like OMAT, right? जिसमें like calculator नहीं दिया होता, वहां पर ये concept useful रहेगा. So let's see what is the concept. So suppose you have a ratio x is to y, and you add k in the numerator and you add l in the denominator. So you get this new ratio, that is x plus k upon y is to l. So now you need to find, like, is this is greater or this is greater. So basically we need to find comparison between these two ratios. So what would be the result? X y condition देखो, if x y is greater than k और l के रेशियो से, इफ एक्स इज टू वाई, जो तुम यहाँ पर ऐड कर रहे हो के और एल, इनके रेशियो से ग्रेटर है, देन द रिजल्ट वुड बी लेसर. लाइक देखो, इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ. जो साइन ऐसे ना, ऐसे साइन है, ये बड़ा था पहले और रिजल्ट में भी यही बड़ा रहेगा, ठीक है. बट अगर इसका उल्टा हो, इफ एक्स वाई इज लेस देन के इज टू एल, तो रिजल्ट में भी वही होगा. एक्स वाई जो ओरिजिनल है वो फाइनल से छोटा रहेगा. सिंपल याद करने का भी तरीका मैंने तुम्हें बता. दिस इज द थिंग दैट यू कैन. नाउ लेट मी टेल यू फ्यू एग्जांपल्स इसके, देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है. आई होप ये समझ में आ गया होगा कि याद कैसे करोगे और क्या सीन है, ठीक है. लेट्स सी. सपोज इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल, 2 3 4 5. यू वांट टू कंपेयर दीज टू रेशियोज, लाइक विच वन इज ग्रेटर. अब हमें तो दिख रहा है इजिली, लाइक कितना ये है, 66.6 समथिंग है ना, और ये है तुम्हारा 80%. सो दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है. ऐसे तो ये ग्रेटर है. बट अब देखो, एग्जाम में अगर ऐसे नंबर आए, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम कर लोगे. यू डोंट नीड टू यूज कैलकुलेटर और यू डोंट नीड टू यूज दिस मैथड और एनीथिंग. बट फॉर फ्यू मे बी डिफिकल्ट रेशियोज, मे बी एनी डिफिकल्ट थिंग, देन यू कैन यूज दिस थिंग. नाउ देखो यहाँ पर कैसे यूज होगा. इफ यू सी दिस थिंग, वी हैव एडेड 2, है ना, वी हैव एडेड 2. तो ओरिजिनली क्या था, 2/3, एंड वी हैव एडेड 2/2. सो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर. तो व्हाट विल द फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट में भी यही आएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है. देखो ये बड़ा है ना, 80% वॉज ग्रेटर. फाइन. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. नाउ लेट्स सी, लेट्स टेक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल. 23/7, 23/27. नाउ 23 plus 5 upon 27 plus is 4. Okay, so now you want to compare, like result is 28/32. You want to know like which one is greater, this is greater or this one is greater. So now it is not as easy. जैसे लास्ट जो था हमने कैलकुलेट कर लिया था कि like 66.6 है और वो 80 है, we are able to do easily. But here it is not possible to do this thing easily. यहाँ पर we cannot do that calculation as easily. So what we'll be doing,
लेट्स सी लाइक विल बी यूजिंग दिस थिंग, ये वाली चीज हम यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट, एंड विल बी एबल टू फिगर आउट 23 is to 27 and this is 5 by 4. So which one is greater? Less than 1, this is greater than 1, so this is greater. In the final result also 23 by 27, this will be less than 28 by 30. I hope this thing is clear. अब देखो ये इतना लाइक बहुत ज़्यादा व्हाट आई फाइंड यूजफुल नहीं है, बट दिस द कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दिस, सम टाइम इट माइट बी यूजियर, सम टाइम इट might be useful. Okay, so let's see the next thing, proportion and continued proportion. So I hope till now like definition of ratio is clear and comparison of ratio is clear, but understand the concept, and in the exam if some difficult scenario comes, I would recommend to use the calculator. Right, ओमैट एग्जाम में हेल्पफुल होगा, वो वहां पर नंबर भी ऐसे क्लोज देते हैं, सो यू विल बी दिस लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक सपोज दिस एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है, देन देयर विल बी दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस वेयर यू कैन इजीली कंपेयर. अब जैसे इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, मैं क्या कर देता हूँ इसको, अगर सपोज मैं ऐसे कर देता हूँ 23 by 27 एंड देन लेट्स सेट 23 plus 4 by 5, जस्ट इतना मैं चेंज कर देता हूँ. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी हियर यू नीड टू कंपेयर दीज टू नंबर, यू नीड टू कंपेयर दीज टू नंबर. अब इस नंबर को भी कंपेयर करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा ना, लाइक दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज 80%, बट वी डोंट नो दिस इज 80%, दिस इज 80% ग्रेटर और लेस, है ना, तो दिस बिकम डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग लाइक इफ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें दिए होंगे ऐसे कि ये चीज एप्लीकेबल हो रही होगी, यू विल बी एबल टू लाइक सम क्वेश्चंस, सम नंबर्स विल बी लाइक दिस, सम नंबर्स विल बी लाइक दिस, एंड लाइक ऐसे ऐसे नंबर्स होंगे जो तुम कंपेयर कर पाओगे. बट कैट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैट में यू कैन यूज द कैलकुलेटर अगर कुछ ऐसा. ओके, नाउ सी प्रोपोर्शन एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, बट राइट नाउ विल जस्ट सी इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, इसका जितना जरूरत है उतना ही देखेंगे. विल सी दिस थिंग इन द डिटेल इन प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन. लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एवरेजेस विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, राइट नाउ लेट्स सी A is to B equal to C is to D. This thing is called proportion. A, B, C, D are in proportion. And this represented as A is to B. Whenever you have this equation, you can write like this, product of extremes equal to product of mid terms, जो भी इसको बोलते हो, A into D equal to B into C. You can see from this equations also, cross multiplication. So this is called the proportion. Okay. Now continued proportion, you will get this type of statement that A, B, C are in continued proportion. Note down ये कर लो, A, B, C are in continued proportion and value of A is 4 and value of C is 9. Find the value of B. A, B, C are in continued proportion. So whenever continued proportion, that means A is to B, B is to, I will tell you generalized form, but right now just see AB is A is to B, B is to C. So what you do, B square equal to AC, and ये वैल्यू पुट करोगे तो 9 into 4 36 आ जाएगा और B की वैल्यू 6 आ जाएगी. पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं तो B की वैल्यू पॉजिटिव 6. फाइन, प्रोपोर्शन समझ में आया, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन समझ में आया. अब सोचो 3 से ज़्यादा नंबर हो, सपोज इट इज टोल्ड दैट A, B, C are in continued proportion. What it means, continued proportion, A is to B, B is to C, C is to D and D is to E. I hope you are able to understand this thing. ऐसे चल रहा है, ठीक है. This is called continued proportion. And again अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो product of extreme A into E equal to B into D equal to C square. कैसे, ये इसके इक्वल है ना, these two are equal, और बीच वाले टर्म्स अगर ये तुम ले लो, that is C square equal to BD. So this means this thing, तो ये रिलेशन आ जाए. ठीक है, तो अगर 5 नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दियो, ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, और ए की इसकी वैल्यू दे दें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछ लें, देन यू विल एबल टू फाइंड. फाइन, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोपोर्शन, वेरी सिंपल थिंग्स इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. सो नाउ लेट्स सी फ्यू लाइक थिंग्स रिलेटेड टू द, ये थोड़े रूल्स देख लेते हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट and these are helpful in solving the questions. So like suppose you have ratios are given, these ratios are given till ऐसे आगे कुछ भी नंबर दिए हैं.
तो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई, कितने भी आगे ऐसे रेशियोज हों उनको ऐड कर लो, सारे न्यूमरेटर्स का सम और सारे डिनोमिनेटर्स का सम इक्वल टू होगा किसी भी एक रेशियो के साथ, ठीक है, किसी भी एक रेशियो के साथ इक्वल टू होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल 2:3 एंड 2:3, तो 4:6, ठीक है, ये दो रेशियो हैं सपोज। तो अब ये किसके इक्वल होगा, सम, दैट इज 6, 3, 9। तो इसको अगर करो तो 2 और 3 आ गया इक्वल, दोनों के 2:3 के इक्वल आ गया। और इसको अगर 2 से कर दोगे तो 4:6 के इक्वल आ जाएगा। फाइन। तो रिमेंबर दिस थिंग, जितने रेशियोज लिखे होते हैं अगर उन रेशियोज के न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे और डिनोमिनेटर को ऐड कर दोगे, जो वैल्यू आएगी दैट भी इक्वल टू द रेशियो। दिस इज फाइन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस वैल्यू लेट्स से। अब एक और चीज देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये हो गया, एक तो पहला ये हो गया, ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्या हो रहा है, अगर मैं ए ई डी ई एफ, इनको मैं के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दूँ, के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दूँ, के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड, इसको कुछ और कर लो, इसको के डैश कर लो, के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर लो, तब भी फाइनल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे कर, ए बी के डी, सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसको के डैश कर लो, ये के और ये के डिफरेंस। हाँ, इसमें एक और चीज़ कर रखी है, इसमें देखो अलग, इसमें मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो ये अलग से भी कर लोगे, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, अब देखो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा। अब अगर तुम ये सोचो, ये करोगे, अगर ये रेशियो दिया हुआ है, ए इज टू बी दिया है और ये सी इज टू डी दिया है और इज टू एफ दिया है, वो मैंने पहला तुम्हें दिखा दिया, पहला वाला ये दिखा दिया तुम्हें, देख ये डिफरेंट है, ये के डिफरेंट है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, अभी मैंने एग्जाम्पल से दिखा दिया तुम्हें। अब ये प्रूफ देखो जरा, ये चीज, अब इसमें कह रहे हैं कि अगर मैं इसको के से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, ये के कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा जो ऑटोमेटिक वही तो सेम होगा ना, समझ रहे हो, सेम होगा वही। तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस रिलेशन इज ऑल्सो, ये वाला यहाँ पर देखो लिखा है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन, अपने आप से तुम्हें एग्जाम्पल लेके सीख, ये खुद से ड्राइव करनी है। देखो के डैश है और, ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, ए बी ई डी, और अब सबको कर दिया, सपोज स्क्वायर या एन कुछ भी कर दिया, एन कर दिया, सबको पावर एन कर, और ये ऑलरेडी इक्वल टू के डैश था, ये बीच की जगह हटा दो, इक्वल टू के डैश था, ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज टू डी ई इज टू एफ इक्वल टू के डैश था। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, लाइक जो यहाँ पर रेशियो होगा, दैट विल बी ऑल्सो सिंपल। तो ये इसको प्रूव, इसको खुद से अगेन छोटे नंबर्स लेके खुद से प्रूव करके चेक करना। देन दिस इज द क्वेश्चन, इफ a is to b c is to d this is given, find the value of this thing, find the value of this। और यहाँ पर एक और चीज दी है, a is not equal to c, a is not equal। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, 3 a और c अलग अलग है, तो आई विल टेक a इक्वल टू 3x, तो b क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिक 4x हो जाएगा। c को हमें y लेना पड़ेगा 3y, और d तब हो जाएगा, देखो b x एंड y नॉट इक्वल, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दो, देखो 9x² माइनस 9y² एंड दिस इज b, 16x² एंड 16y²। तो 9 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा, और ये x² माइनस y² कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये 9:16 हमारा। अब देखो एक बात समझ में, यहाँ पर जो ये ऑपरेशंस थे तुम्हारे, ये प्लस माइनस के लिए भी वैलिड है, लाइक ये जैसे यहाँ पर प्लस प्लस है, तो यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, ए टू बी इज टू डी, कैन डू a माइनस सी b माइनस डी, दिस विल बी ऑल्सो, एंड देन यू कैन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो वही चीज हो रही है, तो डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन यू कैन डायरेक्टली से दिस रिजल्ट विल बी, अगेन फिर से एक बार इसको ट्राई करना खुद से एंड चेक। And one more thing, whenever you have this type of thing, you can directly just put 3 square minus
अब देखो ये गलती मत करना, 4 3 3 एंड दिस इज 3। अब देखो अगर ये कर दोगे, ये कर दोगे, अब देखो यहाँ पर बोला इक्वल नहीं है, तो यहाँ से तो ऐसे जीरो आ जाएगा। ऑप्शन अगर सपोज जीरो दिया हो या इनफाइनाइट दिया, ऐसे सपोज ऑप्शन हो जीरो, इनफाइनाइट, 9/16, नन ऑफ दिस, कंफ्यूज नहीं होना कि ये जीरो हो जाए, बिकॉज ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक, दिस इज द रीजन, ये गलती मत करना। अदरवाइज तो इसमें जीरो, इनफाइनाइट ये सब आंसर नहीं होंगे। ये आंसर जब होता, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड आंसर जब होता जब ए इक्वल टू सी हो जाता है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और अब यहाँ पर ए मेंशन नहीं है, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू सी मेंशन नहीं है, बट कैन वी टेक, है ना, ले तो नहीं सकते, मेंशन नहीं है, ए और सी में क्या रिलेशन है। तो लेट से ए इक्वल टू 3x एंड वैसे ही करते हैं, बी इक्वल टू 4x, सी इक्वल टू 3y, डी इक्वल टू 4y। नाउ पुट इट दीज वैल्यूज हेयर। अब देखो क्या होगा, 12x आएगा और 9y आएगा और 20x आएगा, 16y आएगा। अब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अनटिल अनलेस यू डोंट नो ए इक्वल टू सी है और ए इक्वल टू नॉट सी है ना। अनटिल अनलेस तुम्हें ये नहीं पता है ए इक्वल टू सी है या नहीं है, या फिर ए इक्वल टू सी नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं, ए सी इक्वल हो सकता है या फिर ए सी इक्वल नहीं है। अगर सपोज ए सी यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ए सी इक्वल हो जाएंगे तो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी कितना, 36, so this will be 1/12 if AC is equal, but AC is not equal, then we cannot determine the answer, we cannot find the answer. So here we cannot solve this question without having information regarding, I hope this thing is clear। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे मत कर देना कि लाइक ये वैल्यू कैंसिल कर, ठीक है। जनरली देखो ऐसे करने की हमारी हैबिट होती है, लाइक अगर तुम क्वेश्चन करने लगोगे तो ऐसे करने लगोगे, 4 × 3, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, 3 × 3 एंड 5, 4 एंड 4 × 4। ऐसे करोगे तो देखो वही आंसर आ जाएगा 1/12, है ना। बट दैट इज नॉट राइट आंसर, योर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज यू हैव हेयर सॉल्व क्वेश्चन। तुम्हें यहाँ पर 3a ले, 3x ले, यू हैव टेकन a इक्वल टू c, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन लिस्ट। ठीक है, सो आंसर विल बी कैन नॉट बी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो जनरली रेशियो दिया होता है A:B:C, तो ऐसे लिखा होता है 1:2:3, तो हमें पता होता है कि ये ABC रेशियो में दिए हुए हैं। बट जब ऐसे देते थे तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो दोनों ही सेम चीज़ है, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज। ABC ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, इक्वल टू ए कर लो, इक्वल टू के कर लो, एक्स कर लो, वॉट एवर यू कैन डू, देन ए इक्वल टू 2k हो जाएगा। ये मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, बट ये ऐसे नहीं करोगे, लास्ट में धीरे धीरे चीज़ें अपने आप करने लोगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करें। 5k हो गया, ABC की वैल्यू आ गई, जस्ट पुट इट हेयर, तो कितना आ जाएगा 10k इक्वल टू 75। आई होप कैलकुलेशन वगैरह सही कर रहा हूँ मैं। k इक्वल टू 7.5 आ जाएगा, और तुमसे पूछ रहा है A+C दैट इज 7, A+C पूछ रहा है, दैट इज 5+2 दैट इज 7k, और 7 × 7.5 जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइन, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइन, ऐसे नॉर्मली करोगे, बट अब देखो करना कैसे, यू विल नॉट टेक दिस मच टाइम, इतना कैलकुलेशन नहीं करोगे। जब भी तुम्हें ऐसे दिया है A:2 एंड यू नीड टू फाइंड A+C। A+C देखो कितना है, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, अभी आगे हम इसको करेंगे अच्छे से। जस्ट ये मुझे तुम्हें रेशियो दिखाना था कि कैसे सॉल्व, ठीक है। सब विल मिक्स द रेशियोज, रेशियो को मिक्स करेंगे, AB दिया होगा और BC दिया होगा, उन दोनों को मिक्स, ये सब आगे करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट सी, अगर तुम्हें A:B:C दिया हुआ है 2 3 5 एंड यू नीड टू फाइंड सपोज A, और लाइक लाइक सपोज इस नंबर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूँ। लेट से ABC हैज सम मनी, ABC हैज 75 रुपीज, सिंपल,
ABC has 75 rupees and those rupees are in this ratio. उन रुपीस का जो रेशियो है वो 2:3:5 है। ABC के पास 75 टोटल रुपीस हैं और उन रुपीस का रेशियो इतना है। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड हाउ मच रुपीस डज ए हैव, ए के पास कितने रुपए हैं। तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस, ए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो निकालना हो ए निकालना है। अब अगर बी निकालना हो तो बी एज टू, ये ऐसे कर लो, मतलब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी और यहाँ पर जो निकालनी है इनटू 70। देखो क्या ए कितना है तुम्हारा 2 है, बिकॉज ये रेशियो है ना एक्स एक्स जो लोग ये तुम 2x यहाँ पर जैसे x रखोगे 2x यहाँ पर x रखोगे यहाँ पर x रखोगे और ये सब मिलके कैंसिल हो जाएगा x। ठीक है, so that's why directly you can do this thing. So 5 3 8 2 10 into, so this is the 2 5 15 15 आएगा। तो 15 अमाउंट विल बी ए है, ए के पास कितना 15 रुपीज होगा। बी के पास अगर निकालना हो विल डू लाइक दिस, तो बी का कितना है 3/10 इंटू 75। तो बी का हो जाएगा और 75 3 कितना होता है 75 3 210 225, थिंक आई एम राइट, 225 22.5, तो इसका अमाउंट 22.5 हो जाएगा। अब रिमेनिंग सी का हो जाएगा, या फिर अगर इससे निकालोगे तो सी ए प्लस बी प्लस सी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन कैसे कर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और सी के पास कितना, तो व्हाट आई विल डू, ए इज टू बी इज टू 2 इज टू 3 इज टू 5, बहुत आसान सी चीज़ है, जस्ट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो डैट तुम्हें कन्फ्यूजन। ठीक है, अब ए प्लस निकालना है, ए प्लस सी को ऊपर रखा और टोटल नीचे रखा। ठीक है, एंड कितने से निकालना है 75 से। ए प्लस कितना है दैट इज 7/10 75, तो वही इसका जस्ट कैलकुलेशन कर लेना। 70 कितना होता है 7 7 जब 490 490 490 आई थिंक 525 52.5, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे बी रॉन्ग। ठीक है, 35 था, ठीक ही होगा। तो दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। ये क्वेश्चन तुम्हारा कैट का है, दिस क्वेश्चन हैज कम इन द कैट, 2004 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। देन आर कैन नॉट, दिस इज गिवन। तो जो इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा था है ना, लाइक इसको इक्वल नहीं ले सकते इक्वल टू बी, वो चीज़ इसमें यूज हुई है। तो दिस इज गिवन, तो पूछ रहा आर कैन नॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये जस्ट जो आजकल तुम्हारे वीआरसी में क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन तो बेसिकली पूछ रहा है कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है ना। सीधे सीधे अगर ये पूछता तो देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्स वैल्यू, आर की कितनी वैल्यूज हो सकती है, आर की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। कैन नॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, तो दे आर जस्ट रिडंडेंट थे, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अब देखो क्या करोगे इसमें, एक तो ऐसे कॉन्सेप्ट लगाओ कि क्या करोगे, आर को इधर कर देते, सबको ऐड कर दें। अगर ये माइंड में आ रही होगी तो कोई बात, सबको अगर ऐड कर दें तो बी प्लस सी, देखो सब ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर ऐड कर दोगे सबको। तो दिस इज 1/2, आर इज 1/2। ये तो सबको दिख गया था एग्जाम में, 2004 के एग्जाम में, तो बहुत सारे लोगों ने ये आंसर लगा दिया होगा, बट दिस इज नॉट राइट आंसर। ये राइट आंसर नहीं है, दिस इज नॉट राइट आंसर। यहाँ पर हमने क्या किया, ए प्लस बी को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को कैंसिल कर दिया। बट सपोज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता, लिसन दिस थिंग केयरफुली, 0.0 नॉट डिफाइंड होता है, 0.0 नॉट डिफाइंड होता है, सबको पता होता है। 0.something 0 होता है, बट 0.0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर अगर तुमने इसे कैंसिल किया है, इफ यू हैव कैंसल्ड, अगर ये 0.0 होता, इफ ए प्लस बी प्लस सी वो 0, तब ये कैंसिल कर पाते क्या हम, लाइक 0 ये कैंसिल कर पाते, नहीं कर पाते। तो यू हैव टेकन 2 सिचुएशन, देयर आर 2 केसेस ना, ए प्लस बी
प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द डेट केस। ये वो वाला केस है ना, ये वो वाला केस है जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 होता तो हम ये कैंसिल ना कर पाते, नॉट डिफाइंड हो जाता आर की वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस है व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड केस। तो नाउ यू नीड टू फाइंड द आर की वैल्यू व्हेन a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो कहीं पर भी एक वैल्यू पुट कर दो। लेट से c की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दो। c की वैल्यू है माइनस a प्लस बी। तो अगर c की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो r इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज माइनस। आर की एक और वैल्यू है दैट इज -1। तो दैट्स वाई नॉट फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट। आई होप समझ में आया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस कर गए। लाइक आई थिंक लाइक 90% से ज़्यादा जनता ने इसको श्योर गलत किया होगा। ठीक है, हाई चांस है। आई थिंक अगर मैंने भी एग्जाम दिया होता तो मैं भी वहाँ पर इसको मिस कर जाता इस पॉइंट। ठीक है, बट थोड़ा सा डाउट माइंड में आना चाहिए जब ऑप्शंस ऐसे दिए। ठीक है, जब ऑप्शंस ऐसे दिए हों देन डेफिनेटली माइंड में तुम्हारे ऐसे थॉट्स आने चाहिए कि ऐसा रीज़न क्यों है। अदरवाइज अगर मैं जनरली से सॉल्व करता, हाई चांसेस कि इसे मैं मिस कर जाता, बिकॉज इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड जिसको हम इतना ध्यान से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि जब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करोगे तो जीरो कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। यू कैन नॉट कैंसिल लाइक जीरो और जीरो इसको वन कर दिया। ये बात समझो, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट कैंसिल जीरो अपॉन जीरो। ये वन नहीं होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। तो हमने ये कैंसिल किया है, इट मीन्स दिस इज द केस दैट a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल। अगर ये केस है तो दूसरा केस क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। उस केस के लिए आर की वैल्यू क्या होगी? केस के लिए आर की वैल्यू है, इस केस के लिए आर की वैल्यू है 1/2 और केस के लिए आर की वैल्यू है -। अगेन इसको फिर से देखना और समझना इस क्वेश्चन को, है ना। समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब ये देखो, यही मैं तुम्हें बता रहा था, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। डिवाइड 117 अमंग ए बी सी सच दैट देयर शेयर्स आर इन दिस रेशियो। अभी मैंने तुम्हें एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया था ए बी सी, और जैसे ऐसे नॉर्मल दिया हो एक्स वाई जी इनका रेशियो दिया, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब ये वाला कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ये वाला रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको देखो क्या करोगे, पहले तो रेशियो को नॉर्मल कर लो। ठीक है, पहले रेशियो को नॉर्मल कर लो। चाहो तो अगर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस। अगर सपोज हमें ए का रेशियो फाइंड करना है, व्हाट वी कैन डू, ए का रेशियो फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए अपॉन टोटल। ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे देखो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा इंटू 117, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। सो टू मेक कैलकुलेशन इजियर, तो कन्वर्ट दिस रेशियो इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब 1 2 3 4, तो क्या करो, एलसीएम ले लो। अब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एलसीएम लो, जो भी नंबर तुम्हारे माइंड में स्टक कर जाए, जल्दी से आ जाए, वो ले लो। तो यहाँ पर 12 दिख जाएगा, दिस इज 6, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 4 एंड दिस इज, नाउ योर ए बी सी रेशियो इज 6:4:3। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। 6:4:3। ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ए का वैल्यू विल बी 6 अपॉन टोटल, दैट इज 6 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज 6 अपॉन 13 इंटू टोटल वैल्यू कितनी है, दैट इज 117। 13 जब 117 होता है तो इज 4। तो ये ए का शेयर आ गया। बी का शेयर निकालना है, तो बी का रेशियो कितना है 4, और टोटल रेशियो कितना है 6 प्लस 4 प्लस 3, और टोटल वैल्यू कितनी है 117। तो अब एक बार वैल्यू निकाल ली है ना, तो 9436। तो अब इसका डायरेक्टली कर लेते हैं, सी का कितना है 3, और वैल्यू ये कितनी निकाली थी हमने 9। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करो, देख लेना, अपने स्पीड से तुम कर सकते हो। तो नाउ दिस इज क्लियर, आई होप टिल नाउ बेसिक सी चीज़ें तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई है, देन थोड़ा वो कंपेरिजन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। देन वी हैव डन फ्यू क्वेश्चन, और तुम्हें ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, ये बहुत जगह अलजेब्रा में कॉमन मिस्टेक होती है, ये 0 0 कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा बेसिकली ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से बोल सकते हो। रेशियो का इतना क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, एंड देन यू लर्न कि लाइक को ऐड कर सकते हो, ऐसे जो रेशियोज दिए हूँ इन सबको ऐड कर सकते हो, ऐसे क्वांटिटेटिव रेशियोज को ऐड कर सकते हो, उसकी वैल्यू पे चेंज नहीं होगा।
अगर सारे रेशियोज का पावर लगा दो तो वो भी सेम रिजल्ट देगा, k⁴n। ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई। देन यू हैव सीन एक और फिर कॉन्सेप्ट हमने देखा कि सपोज ए बी सी डी या फिर ए बी सी, इनके कुछ रेशियोज में इनके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ मनी है इस रेशियोज में है। तो अगर ए बी की वैल्यू निकालनी हो, है ना, और इनके पास सपोज लेट से 1000 रुपीज़ हैं टोटल और रेशियो ये है रुपीज़। तो अगर ए का रुपीज़ निकालना है कि ए के पास कितने रुपए, तो कैसे निकालेंगे, 2:2 + 3 5 5 10 14 × 1000। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अब इसी के आगे का पार्ट, ये देखो इसके आगे का पार्ट, इसमें देखो क्या हो रहा है, जस्ट इसी के आगे की बात है। ये दो मेथड है जो मैं बताने जा रहा हूँ, समझो क्या है। सपोज देयर आर 2 पर्सन 3 पर्सन ए बी सी। अब तुमसे बोला गया कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एज टू बी इज 2:3 एंड रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी एंड सी इज 4:4। ये दिया हुआ है तुम्हें। लाइक अभी वाला जो हमने क्वेश्चन किया, ये एक में दिया हुआ था, एबीसी का ऐसे दिया हुआ था ना, एबीसी का एक में रेशियो दिया, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्रेक करके रेशियो दिया। एबी का अलग रेशियो दिया और बीसी का अलग रेशियो दिया। तो नाउ यू नीड टू कंबाइन दिस रेशियो। अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन में दिया होगा लाइक ए बी सी हैव लेट से 120 रुपीज ऑल टुगेदर and ratio of amount that A and B have, that is 2:3. The ratio of amount that B and C have, that is 4:5. Now find the rupees, find the amount that A have. A के पास जो रुपए हैं वो तुम्हें फाइंड करना। तो फर्स्ट स्टेप here is to combine these ratio. तो हाउ यू गोना कंबाइन? अब इसके देखो दो मेथड है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। दोनों ही तुम्हें पता होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन वहाँ पर तुम्हें कौन सा जल्दी से रिकॉल करता है या फिर तुम्हें लगता है कि कौन सा जल्दी से यूज कर पाओगे, विच वन विल बी फास्टर, यू हैव टू यूज। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट मेथड। तो ये रेशियो है, तो फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। क्या करना है फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड ये देख लेते हैं, मैकेनिक लाइक बेसिकली ये तुम्हारा मैकेनिकल मेथड, मतलब इसमें प्रॉपर देखो, जैसे ए इज टू बी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ए इज टू बी एंड बी इज टू सी। दिस इज 3 2 3 5 4 5 2 3 4। अब ये है, अब तुम्हें ए बी सी का रेशियो निकालना है। ये मतलब बहुत कम यूज करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो दूसरा मेथड है वही यूज करोगे, बट ये श्योर एंड शॉर्ट है, इससे मतलब आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मेथड देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आगे कितने भी रेशियोज हो सकते हैं, कितने भी रेशियोज हो सकते हैं। यहाँ पर दो का ही रेशियो, यहाँ पर तीन के बनाने हो सकता है कि लाइक 4 लोग दिए हों, 5 लोग हों, 6 लोग हों, कितने भी लोग हो सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, जस्ट तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे ए बी सी है, सो यू हैव टू राइट ए बी बी सी। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाली चीज़ थोड़ा रिकॉल करो, ये ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तुम ऐसे नहीं लिख सकते ए इज टू बी लिख दिया और सी इज टू बी लिख दिया, देन यू विल नॉट गेट ए बी सी रेशियो। ए बी सी का रेशियो गलत आ जाएगा तुम्हारा। पहली मिस्टेक इस मेथड की समझ में आई। नोट डाउन दिस थिंग केयरफुली, दैट जब भी ये वाला मेथड यूज करोगे, फर्स्ट मेथड, व्हाट यू हैव टू डू कि लाइक इस मेथड में तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, जहाँ से एंड करेगा वहां से ये स्टार्ट करेगा। देखो ऐसे ए इज टू बी, और देखो बी से एंड हो रहा है, सी से एंड हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से एंड। तो यहाँ पर अब रेशियो किसका निकलेगा, ए बी सी डी ई का रेशियो। और कैसे रेशियो निकलेगा ये देखते हैं। तो ये ऐसे कितने भी नंबर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ प्रोपोर्शन, कितने भी रेशियो दिए होंगे। तो देखो इसको सिंपल याद करने का तरीका, जो पहला टर्म होगा, जो मतलब पहला रेशियो होगा ए के रिस्पेक्ट वाला, इन सारे को मल्टीप्लाई करो, इन सारे को मल्टीप्लाई कर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज इट। ठीक है, ए टू बी टू सी निकलेगा इससे। दूसरे में क्या होगा, अब इसका एक टर्म लो, इसका एक टर्म लो और इसके रिमेनिंग टर्म लो। ठीक है, देखो D1 और इसके रिमेनिंग टर्म। तो अब दूसरा टर्म क्या होगा, इसका एक टर्म लो और रिमेनिंग इसके टर्म, डेट इज 12। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा,
अब क्या करना है, धीरे धीरे इसके टर्म बढ़ाते जाओ। अब इसके 2 टर्म होंगे और इसके रिमेनिंग टर्म देखो, D1 D2 N3 N4। नेक्स्ट में क्या होगा, इसका एक और टर्म बढ़ेगा, इसका रिमेनिंग टर्म। लास्ट में क्या होगा, इसके सारे मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, इसके सारे मल्टीप्लीकेशन। ए बी सी का रेशियो बेसिकली होगा 8 12 15। अब कितने रुपीज थे, आई थिंक दे हैव टोटल 120 रुपीज। अब ए बी सी का निकाल सकते हो। ए का कैसे निकालोगे, 8 दैट इज 35 इंटू 120। तो अब जो भी कैलकुलेशन वो कर लेना, ठीक है। इज इट फाइन? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंबाइन रेशियो। दिस इज कॉल्ड लाइक कंबाइनिंग द रेशियोज। तो दिस इज लाइक वेरी लाइक मैकेनिकल मेथड बेसिकली है ये, कि लाइक आंसर इससे आएगा ही आएगा, कितना भी डिफिकल्ट रेशियो दिया हो, कितने भी नंबर्स दिए हो। ओके, तो सिंपल अगेन ये पैटर्न ऐसे याद करना है तुम्हें। पहला ऐसे, फिर ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ये, और ऐसे। सिंपल, पहले इससे सारे स्टार्ट करना है, फिर एक इसका, रिमेनिंग इसके, दो इसके, रिमेनिंग इसके, और फिर ऐसे करके लास्ट में इसके साथ। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है रेशियो मिक्स करने का। अब दूसरा मेथड देख, दूसरा मेथड देख जो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम यूज करो, जो हमें मोस्टली यूज करना है, बट कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ए बी और बी सी, दूसरा मेथड में बताता हूँ। ए बी और 2 3 4 5 था। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, इन रेशियोज को वांट टू कंबाइन। जस्ट सिंपल राइट ए बी सी, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसका रेशियो लिखो 2 3, एंड इसका रेशियो इसके नीचे लिखो 4 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसको सेम बनाना है बेसिक। बी को सेम बना के मर्ज कर दें। तो बी को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को सेम बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, दोनों को 12 बनाना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर रेशियो में तुम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस नंबर से, और बी और सी का रेशियो, तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में, ताकि इनका रेशियो बना रहे ना। जैसे 8:12, अगर ए और बी का फाइनल देखो 8:12, अभी भी इनका 2:3 बना हुआ है, 2:3 बना हुआ है ना। और बी और सी का देखो 12 और 15, 4 और 5 अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो नाउ फाइनल रेशियो वी हैव 8 12 एंड 15। यही आ रहा था आंसर, सेम। तो दिस इज द वे यू विल कंबाइन रेशियोज। अब थोड़ा लाइक थोड़ा बिगर करते हैं, लेट्स से 4 नंबर लेके करते हैं। लेट्स टेक 4 नंबर ई ए बी सी डी। ठीक है, तो लेट्स से ए बी का रेशियो दिया है लाइक 2:1, बी डी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, एंड सी डी का दिया हुआ है 2:5 कर ले। तो ये ऐसे रेशियो दिए हुए हैं। अब क्या करोगे, ए ये ऐसे लिखो। नाउ ए बी 2:1 है, और बी डी 3:2 है, और सी डी 2:5। इसको अलग अलग लिखोगे, ऐसा नहीं कि लाइक यहाँ पर तुमने 2:5 लिख दिया। अब क्या करना है, हमें कंबाइन करना है, इनको कंबाइन करना है एक एक कर। तो जैसे अगर मैं इसको कंबाइन करूँ बी और डी को, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, इनका 3 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये दोनों सेम हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या आ जाएगा, ये दोनों मिक्स होके आ जाएंगे 6, और ये आ जाएगा 2। व्हाट आई कैन राइट, राइट 3, और इसका आ जाएगा 6, 6 3 और 2, 6 3 2, 6 3, नीचे आ जाएगा ये। ठीक, अब इसको कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इसका 2 और 5 कॉमन है, तो 2 5 10 होगा। तो 10 के लिए इसको 5 से करना पड़ेगा। अब इसको 5 से करोगे तो पूरी लाइन में 5 से करना पड़ेगा, 5। और इसको 10 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, तो पूरी लाइन में इसको 2 से। तो ये 2 इंटू 2, ऊपर कर दो 4। ये तुम्हारा कंबाइंड रेशियो, दैट इज 30
15, 4 and 10, right? So this is the way you will find the ratio of the given. अगर पुराने मेथड से करते तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो दिस इज द वे यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सेकेंड वाला जो मेथड है ये ज़्यादा यूजफुल है, मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी यूजिंग दिस मेथड ओनली, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हें हो सकता है कि पहला मेथड आसान लग रहा हो, बट दिस इज द यूजफुल मेथड, यही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी अपने साइड से थोड़े रेशियोज लिख के प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस द इम्पॉर्टेंट, तो मेक श्योर दोनों सही से समझ में आ गए हो। तो ये पूरा समरी तुम्हें समझ में आ गया जो बताए थे। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट ये था कि रेशियो की मिक्सिंग कैसे करें। रेशियो की मिक्सिंग के लिए इतना भी डिफिकल्ट दिया हो, एक तो ये मेथड है, उसमें जस्ट ये तुम्हें केयरफुल रहना है, जहाँ से एंड होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, उसी ऑर्डर में हो तभी ऐसे निकलेगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे और ऐसे एंड में। और दूसरा मेथड था वो मल्टीप्लाई करके, जो लग रहा होगा तुम्हें थोड़ा भी हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, बट ये वाला मेथड आसान है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मेथड, फाइन। तो सेकंड वाले मेथड पे फोकस करना, प्रैक्टिस करना, बुक से रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो दिस द क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2006 को देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको होमवर्क कर लेना, और सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम कैट 2006 एंड लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू कैन फॉलो द तक्षशिला बुक से कर सकते हो या टाइम की बुक से कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम, और ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है कैट रेस ग्रुप, ऐसे सर्च कर लोगे तो ग्रुप आ जाएगा। दिस द चैनल में मैं वीडियो वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस एंड यू कैन डिस्कस योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप। So that's it for today. Let's see you in the next session.